सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्যাং देहि नमस्तते। বসন্ত পঞ্চমীর পূর্ণতিথিতে আমাদের পিভি টিভির পক্ষ থেকে সকল কয়লাঞ্চল এবং শিল্পাঞ্চলবাসীকে জানাই অনেক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। বাঘ দেবীর আরাধনায় বসন্ত মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে বাঘ দেবীর আরাধনায় পুরো শহর মেতে উঠেছে। বিদ্যার দেবী সরস্বতী এবং সঙ্গীতের দেবী সরস্বতীর আরাধনায় পুরো উত্তাল রানীগঞ্জ কয়লাঞ্চল শিল্পাঞ্চল। আপনারা সরাসরি দেখছেন আমাদের পিভিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সেই দৃশ্য। এখন আমরা এসে উপস্থিত রয়েছি কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুজো এবং তার সাথে সাথে রয়েছে কিছু সার্বজনিক থিম পুজো। সেই থিম পুজোগুলিকেও আমরা আমাদের পিভিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে আপনাদের কাছে তুলে ধরবো। এই মুহূর্তে আমরা এসে পৌঁছেছি খনি শহর রানীগঞ্জের। উপস্থিত রয়েছি 88 নম্বর ওয়ার্ড ইস্ট কলেজ পাড়া এলাকায়, যেখানে আমি আমার সহযোগীকে সরাসরি পিভিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে দেখাতে বলবো সেই দৃশ্য। আমরা এখন এই মুহূর্তে রয়েছি ইস্ট কলেজ পাড়ায়, যেখানে রক্ষক যুবা সংঘ কমিটি যে সার্বজনিক পুজো মিনিমাম 7-8 বছরে পদার্পণ করছে। আপনারা দেখছেন 4 ধাম থিম এখানে এই কমিটির দ্বারা উপস্থাপিত করা হয়েছে। কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, জগন্নাথ পুরী এবং রামেশ্বরম। সরাসরি দেখছেন আমাদের পিভিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে। এবং আপনাদেরকে আরো কিছু এই কলেজ পাড়া এরিয়ার থিম পুজোগুলো, সার্বজনিক যে থিম পুজোগুলো রয়েছে সেগুলো আমাদের পিভিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে তুলে ধরবো। প্রথমে রয়েছে জয় মাতাজি স্পোর্টিং ক্লাব, যেখানে আপনারা সরাসরি দেখেছেন আমাদের পিভিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে কি ওল্ড এজ হোম বৃদ্ধাশ্রমের থিম। এবং আপনারা এখন দেখছেন এখানে কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, রামেশ্বরম, জগন্নাথ পুরী 4 ধাম। এবং এরপরে আপনাদেরকে নিয়ে যাবো জয় শ্রীরাম পুজো কমিটি, যেটা সরস্বতী পুজো কমিটি রয়েছে। তাছাড়া শ্রী শ্রী সিদ্ধিদাতা শিব মন্দির সরস্বতী পূজা কমিটি যে ডেকোরেশন, সেটাও আপনাদের কাছে তুলে ধরবো। এবং ইয়ং চ্যাম্পিয়ন ক্লাব যে আদি যোগী থিম তুলে ধরেছে, সরাসরি সচক্ষে দেখবেন আমাদের পিভিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে। আরো বিস্তারিত জানতে আমরা সরাসরি এখন জুড়ে যাচ্ছি প্রতিটি পুজো কমিটি এবং প্রতিটি পুজো কমিটি যারা মেম্বার রয়েছে তারা এই সার্বজনিক পুজো নিয়ে কি বক্তব্য রাখছে আমাদের সামনে। এবং এখান থেকে আমরা সোজা চলে যাব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি, রানীগঞ্জ গার্লস কলেজ, ত্রিবেণী দেবী ভলেন্টিয়ার কলেজ। সেই কলেজে ছাত্রছাত্রীদের সাথে ডিরেক্ট জুড়বো যে তারা কিভাবে হর্ষ উল্লাসের সহিত এবং শ্রদ্ধার সাথে আজকের এই দিনটিকে পার করছে। তারপর বলে রাখি আজ এবং কালকে শীতল ষষ্ঠী। বাঙালি এবং প্রতিটা মানুষের মনে একটা আবেগ তৈরি হয়ে আছে এখন থেকে, যে শীতল ষষ্ঠীর যে ভোজন, একে অপরকে আমন্ত্রণের মাধ্যমে এই শীতল ষষ্ঠী বিশালভাবে অনুভব করে এবং খুশি একে অপরের প্রতি খুশি জাহির করে। এমনটাই আমরা তুলে ধরবো আমাদের পিভিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে। আরো সরাসরি জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। पूरे देश के साथ साथ रानीगंज में भी धूमधाम से सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया है। रानीगंज के 88 नंबर वार्ड अंतर्गत ईस्ट कॉलेज पारा इलाके में जय माता दी स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से धूमधाम से सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। इस बार पूजा आयोजकों द्वारा वृद्धाश्रम को पूजा का थीम बनाया गया है। जय माता दी स्पोर्टिंग क्लब इस वर्ष जो थीम चुनी है वो वृद्धाश्रम के ऊपर में है, ओल्ड एज होम। तो ओल्ड एज होम में हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि एक माँ बाप कैसे अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं और सब सुख सुविधा जो उनसे हो सकता है वो सब अपने बच्चे के लिए करते हैं। लेकिन अंततः आज भारत के कल्चर में जो विदेशी माहौल बना हुआ है, इसमें अधिकतर कोई में ये देखा जा रहा है बहुत सारे जो क्लास है, अलग अलग क्लास के फैमिली जो है वो क्या कर रहे हैं कि अच्छा जॉब पा ले रहे हैं, अपना सुख सुविधा देख ले रहे हैं, कहीं फ्लैट ले रहे हैं और रह ले रहे हैं बाहर। लेकिन गांव में पड़े जो उनके माँ बाप हैं उनको वो कोई सुविधा मुहैया नहीं करवा रहे हैं। तो अंततः वहीं टीडीवी कॉलेज में भी धूमधाम से सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। वहीं आदर्श युवा संघ की तरफ से भी भव्य तरीके से मां सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया है। पूजा के आयोजन के साथ साथ उन्होंने समाज को संदेश देने का भी प्रयास किया है। इस बार उन्होंने सेव द बर्ड नाम से थीम बनाकर समाज को पर्यावरण सुरक्षा को लेकर संदेश देने की कोशिश की है।
सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्य भय सनि अग्निम प्रजां बहुला सूर्य सरिक्षको शिष्टौ देवहु समवर्तता तदोषा सिद्धमागृष्टै धम्मा सरधम्मे। इस पर हम लोग जो है प्राकृतिक से जुड़ा हुआ चीज जो है, जो आज धीरे धीरे पक्षी जो है हम लोग से विलुप्त होते जा रहा है छोटा, लेकिन सब चीज क्या है प्राकृतिक से जुड़ा हुआ चीज है, इसलिए हम लोग सेव बर्ड्स के रूप में मना रहे हैं। इस बार मैंने पूजा का थीम रखे हैं। आदर्श युवा संघ इस बार कितना साल में मतलब आदर्श युवा संघ का 36वां साल है आपका इस पूजा का। अंदर का सजावटी जो है आप लोग जो सजाए हैं थीम पूजा में जो सजाए हैं, तो थोड़ा सा शहरवासी को बताइए इस बारे में क्या थीम रखते हैं। थीम देखिए तो सेव बर्ड्स के हिसाब से बनाया हुआ है, तो जितने भी पक्षी है उनको दिखाया गया है कि वो लोग श्री श्री सिद्धिदाता शिव मंदिर सरस्वती माता कमेटी की तरफ से भी सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया है और यहाँ पर मनमोहक अंदाज में लाइटिंग का काम किया गया है। ये लगभग 2011 से हम लोग का अभी तक लगातार होता आ रहा है और इस बार भी बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है, बहुत ही भव्य प्रतिमा का विस्तार किया गया है और कई सांस्कृतिक अनुष्ठान का यहाँ कार्यक्रम किया गया है। तो आपके द्वारा हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि आए, इन्हें देखें और कार्यक्रम में भाग लें। अच्छा, बिना पानी उत्सव जो है सरस्वती माता की जो पूजा है, इस विषय में कोयलांचल शिल्पांचल की क्या मैसेज देंगे आप लोग का कमेटी की तरफ से? इस विषय में हम यही मैसेज देंगे कि आप शिल्पांचल में खास करके रानीगंज के कॉलेज पारा में आप सरस्वती पूजा आइए, देखिए। वहीं रक्षक युवा संघ की तरफ से भी धूमधाम से सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया है। उन्होंने थीम स्वरूप 4 धामों को दर्शाया है। जय श्री राम पूजा कमेटी की तरफ से सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया है। यहाँ पर मनमोहक अंदाज में मूर्ति का निर्माण किया गया है और बांग्लादेश में चल रही गतिविधियों को पूजा का थीम बनाया गया है। तो चैनल के माध्यम से रानीगंज वासियों को जय श्री राम पूजा कमेटी की बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस साल का थीम है हम लोग का, जो कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश के जिहादियों द्वारा जो अत्याचार हुआ था, उसी को लेकर हम लोग आज थीम दर्शाए। देखिए, बच्चे लोगों का संस्कृति प्रोग्राम तो है, हर साल होता है हम लोग का। डांस कंपटीशन है, राइटिंग कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन है और शाम को तो एक दिन ईस्ट कॉलेज पारा में ही न्यू चैंपियंस क्लब की तरफ से आदि योगी को पूजा का थीम बनाया गया है। यहाँ पर पंडाल के सामने एक विशाल शिव की मूर्ति बनाई गई है और यहाँ पर भी मनमोहक अंदाज में मां सरस्वती की मूर्ति बनाकर धूमधाम से पूजा की जा रही है। न्यू चैंपियंस क्लब हम लोग का पूजा कमेटी 1989 में स्थापित हुआ। उस समय से लेकर अभी तक हमारे सीनियर लोगों ने जितना दिन सगा करा, हम लोगों ने फिर उसका भार संभाला। इसका रिजल्ट आपका सामने है। इस साल हम लोग दिखाए हैं। चैंपियन क्लब क्या मतलब थीम इस बार रखे हैं? थीम पूरा आदि योगी पर ही पूरा मंडाल का दर्शन है। मंडप का जो थीम है पूरा आदि योगी पर ही निर्भर है। कुछ सांस्कृतिक अनुष्ठान बच्चों के लिए कुछ कार्यक्रम रखे हैं, तो बच्चों लोगों को ड्राइंग वगैरह कराया जाएगा, म्यूजिकल वगैरह करवाएंगे। क्या बजट मतलब बजट 1 लाख प्लस का बजट है। पूरा ये आदि योगी प्रयास था, टाइम कितना लगा? प्रयास हम लोग का जो शिल्पी था बनाने वाला, वो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज उनके वजह से इस मुकाम पर हम लोग पहुँचे हैं, जो मात्र 8 दिन के अंदर में इतना बड़ा प्रोग्राम को वो सेट करके दिए हैं। आपका नाम है? मेरा नाम सुनील बर्मन, क्लब का मेंबर है। क्लब का मेंबर है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बांकुड़ा में दुर्गा पूजा की ही तरह सरस्वती पूजा का भी धूमधाम से आयोजन किया गया।
आज सुबह से सभी उम्र के लोग सरस्वती पूजा में रंग गए। शहर के बड़े बजट की पूजा की थीम ने लोगों का दिल जीत लिया। बड़े बजट में से एक पूजा में रॉयल बंगाल क्लब, कॉलेज मोड़ टेंट और फ्रेंड 50 पूजा है। रॉयल बंगाल क्लब बांकुड़ा में कॉलेज रोड पर रॉयल बंगाल क्लब की पूजा 5वें वर्ष में प्रवेश कर गई। इस क्लब का मंडप दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के रूप में बनाया गया है। बजट लगभग 4 लाख रुपए है। फ्रेंड 50 क्लब की सरस्वती पूजा इस साल 30वें साल में प्रवेश कर गई। मंडप राजस्थान में जयपुरिया कठपुतली नृत्य की तर्ज पर बनाया गया था। पूरे मंडप को कई रंगीन गुड़ियों से सुसज्जित किया गया है। लगभग 8 लाख रुपए की बजट वाली यह पूजा भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बांकुड़ा में कॉलेज मोड़ टेंट की पूजा का यह 42वां साल है। इस क्लब का थीम है आवर्त। यह मंडप साइकिल सहित विभिन्न आकारों के टायरों से बनाया गया है। 8 लाख रुपए बजट का यह पूजा मंडप भी इस बार शहर के आकर्षणों में से एक है। बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने अपनी ड्यूटी करने के बाद रात में जागकर इस साल के थीम को उभारा है। आज महिलाओं को विभिन्न स्थानों पर वंचित और अपमानित किया जाता है, वह सुरक्षित नहीं है। आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना घटे, इसी संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस थीम का आयोजन किया गया है। पंडाल को इस थीम के आधार पर सजाया गया है। महिला उपरोहित द्वारा पूजा की गई और कॉलेज की छात्राओं ने मां सरस्वती की पूजा की। इसके साथ ही बांकुड़ा के बिकना मिलकर के वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों को प्रसाद और खिचड़ी भोग खिलाया गया। এছাড়াও যে আপনাদের যে বিশাল একটা চাপ থাকে, চাপের মধ্যে এত সুন্দর ডেকোরেশন বা এই পুজোতে কি বলবেন? এটা আমাদের সরস্বতীর যে আরাধনা, সেটার জন্যই তো এই নার্সিং স্কুল আমাদের তৈরি আর কি। এখানে আমাদের মেয়েরা এবং সঙ্গে সিস্টার টিউটার যারা আছেন, সিনিয়র সিস্টার টিউটার, সবাই কিন্তু
অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে এইটা আমরা এই পুজোটা করার চেষ্টা করি এবং এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আজকে ওদের যতটা ইনোভেটিভ কাজকর্ম করা যায় ওরা এই সরস্বতী পুজোতেই সেগুলো ওদের কাজগুলো ওরা দেখায় করতে পারে এবং রাতে নিজেদের যা ডিউটি আওয়ার্স পড়াশুনো সেই চাপটা সামলে ওরা কিন্তু ওদের যে কাজগুলো অনেক রাত্রি পর্যন্ত জেগে এগুলো নিজেরা ওরা তৈরি করেছে। এখানে যা যা দেখছেন সবই কিন্তু ওদের নিজের হাতে তৈরি। আর এবারে আমাদের আরেকটা যে নতুন ওয়ার্ডের একটা চাপ, তো চাপের মাঝে কিভাবে ডেকোরেশনটা করলেন? চাপ তো আছেই, প্রফেশনে অবশ্যই চাপ আছে, কিন্তু তার সাথে আমাদের যে একান্ত নিষ্ঠা এবং হচ্ছে আমাদের সবথেকে সর্বোপরি যেটা এখান থেকে শেখানো হয় যে নারী মানে আমরা সমস্ত কিছুই পারি। তো আমরা যেমন ওয়ার্ডে ডিউটি করি সেরকমই এখানে রাজ্যে অ্যাসাইনমেন্ট লিখি, আমরা পড়াশোনা করি, তার সাথে আমরা যে কতটা মানে শিল্পীর যে একটা গুণ সেটাও যে আমাদের মধ্যে বর্তমান সেটাই আমরা এই সরস্বতী পুজোর মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে পারি। তো সেই জন্যে আমরা এবার থিমটা চুজ করেছি নারীর উপরে। তো সেখানে এখন যেটা এই সমাজে ঘটে চলেছে নারীরা যে ব্যস্ততার মধ্যে কাজের মধ্যে আজকের এই পুজো আমাদের সবসময় ডিউটি করতে হয়, ডিউটির মধ্যেও টাইম বের করে এটা করেছি না, নিজের মন থেকে করা হয়েছে। আর ছবিগুলো তো সবাই রাত জেগে করা হয়েছে, রাত 12টা 1টা অবধি আমরা কাজ করেছি, কিন্তু সারাদিন ডিউটি করতে হয়, ডিউটির মাঝেও কাজ করতে হয়। এর মধ্যেই আমরা এতটা ডেকোরেশন তুলতে পেরেছি। কতটা আনন্দ হচ্ছে? অনেক ভালো লাগছে। আজ সারাদিনটা কীভাবে কাটাবো? এই তো শাড়ি পরবো, রাত্রেবেলা আবার সাজবো, বুঝবো, ওই কাজ করবো, ঘুরবো, মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরবো, এইভাবে। কি নাম? আমার নাম পাপিয়া মণ্ডল, থার্ড ইয়ার জিএনএম স্টুডেন্ট। পাপিয়া মণ্ডল। পাপিয়া মণ্ডল। बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे देश के विभिन्न रेलवे जोन के साथ साथ आसनसोल मंडल में भी देखा जाता है कि रेलवे की जमीनों पर प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वहां पर वर्षों से रहने वाले लोगों द्वारा बाधा पहुंचाई जा रही है। इस विषय पर जब आज आसनसोल रेलवे डिवीजन के डीआरएम चेतनानंद सिंह को प्रेस मीट के दौरान पत्रकारों से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि रेलवे में आज जो स्थिति है वह पहले नहीं थी। चेतनानंद सिंह ने कहा कि रानीगंज में आप लोग 10 तारीख को तोड़ने का एक बात नोटिस जारी किए हैं, शायद कोर्ट में केस था, आप लोग जीत गए हैं 74। तो रेल का अपना क्वार्टर, रेल का अपना जगह खाली करने में भी आप लोग को दिक्कत हो रहा है। इसमें आप ये देखें कि पहले जैसे माननीय रेल मंत्री की बात ध्यान से अगर सुन रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि पहले रेलवे में पैसे की कमी रहती है। हम अपने क्वार्टर्स को मेंटेन नहीं कर पाते थे, बाउंड्री वॉल नहीं बना पाते थे, रोड टूटी रहती थी, तो एक जनरल धीरे धीरे नेग्लेक्ट आ रहा था रेलवे। बट अभी ये जैसे आप सभी को पता होगा अम्ब्रेला वर्क के बारे में, ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आज आप लोग सब मनीषी जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों को अम्ब्रेला वर्क के बारे में समझना चाहिए कि आप वर्क सालों भर सैंक्शन कर सकते हैं। पहले क्या बजट में एक बार सैंक्शन होगा, इसका जिक्र अभी माननीय रेल मंत्री कर रहे थे। तो पैसे की उपलब्धता के बाद प्रोजेक्ट्स बढ़ गए हैं। तो अब क्या है, कोई गरीब व्यक्ति कहीं रह रहा है तो हम लोगों को तकलीफ नहीं, वो रह रहा है, लेकिन अब रेलवे को उस जमीन की जरूरत है क्योंकि नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। लाइक दुर्गापुर में हमारा 5th लाइन आ रहा है जो कि उस क्षेत्र के डेवलपमेंट को बहुत आगे ले जाए। और दुर्गापुर जो हमारा स्टेशन है उसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स है और वहाँ एक गुड शेड भी है, अगर आपको ध्यान होगा डाउन लाइन के साइड में गुड शेड है जो काफी वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होती रहती है। तो दुर्गापुर के पूरे स्टेशन का हम लोग काया पलट कर रहे हैं फॉर द ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी डिमांड आता है कि दुर्गापुर से और ट्रेन खुलनी चाहिए, बट हम खोल नहीं पाते क्योंकि ऑपरेशन कंस्ट्रेंट। क्योंकि अब ये जमीन की जरूरत है हम लोगों को, तो हम लोग बातचीत के माध्यम से, उसका एक तरीका है, नोटिस देना पड़ता है, फिर नोटिस दिया, फिर लोगों को समझाया, फिर स्थानीय प्रशासन को लेकर हम लोग जाते हैं। और कोई जबरदस्ती वाली काम हम करते नहीं क्योंकि हम सरकार है, हम कोई सेठ नहीं है कि हम जमीन के लिए हम बुलडोजर चला देंगे, हम लोगों को परेशान, लोगों को कुछ भी, तो उस तरह का काम हम नहीं करते हैं। बट ये जमीन क्षेत्र के लिए के विकास के लिए जरूरी है। जैसे दुर्गापुर का एग्जाम्पल आपने लिया,
आप जाके अगर दुर्गापुर सीनेडियम साहब हैं, आप कभी इनसे मिल लें और आपको ये डिटेल प्लान बताएंगे कि इससे दुर्गापुर स्टेशन में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, जिस काम के लिए अभी हम लोग बहुत तेजी से आप देख रहे होंगे वहाँ काम चल रहा है, कई सारी चीज़ें की गई हैं। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं सबको गुजारिश भी करूँगा कि इसमें हम लोगों का मदद करें, काम को न रोकें, काम भी रहे और आप भी रहें, इस तरह का कुछ बीच का मसला निकलना चाहिए। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जीआरपी ने हावड़ा और शालीमार से 4 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया। उनमें से एक महिला और नाबालिग है। गिरफ्तार किए गए मोहम्मद आलम, दिलदार बेगम, रियाजुल आलम और रबीउल आलम हैं। आलम को हावड़ा स्टेशन स्क्वायर से और शेष को शालीमार से गिरफ्तार किया गया था। आलम बांग्लादेश में शरणार्थी शिविर में सिंगापुर से आया था। वहां से वह हावड़ा स्टेशन से दक्षिण भारत के लिए एक ट्रेन पकड़ने के लिए भारत आया था। शालीमार के 3 लोग बांग्लादेश के कॉक्स बाजार क्षेत्र में शरणार्थी शिविरों में रहते थे। रबीउल 12 साल का है। उनकी बातचीत में बहुत सारी विसंगतियां हैं। उनके पास पासपोर्ट के साथ भारत में कोई वैध दस्तावेज नहीं था। उनका अपहरण कर लिया गया और भारत में तस्करी की गई। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वे भारत में कैसे आए। पुलिस जांच चल रही है। সঙ্গে কে আছে তোমার লগে? হ্যাঁ একা আইছো? কোন দিয়ে আইছিল? নদিয়া দিয়ে পালাইছিল? নদিয়া দিয়ে টপকেছো? किडनैप करे ना वो आंसर কে আনছিল কিডন্যাপ কইরা? वो लोग का आंसर ওই লোকটা কই ফেলায় গেছে? वो कश्मीर में हमारे बेच दिए लोग। আচ্ছা কয় টাকা দিয়ে বেচছিল? हम जानते पासी ना वो তোমার নাম কি আছে গো? हमारे बेच दिए তোমার নাম কি আছে? हमारा नाम दिलदार। বাংলাদেশে কোনানে বাড়ি? हमारा बांग्लादेश वो कुतुपालम कैंप। হ্যাঁ হ্যাঁ कुतुपालम कैंप কবে বাইরে ছিল বাংলাদেশ থেকে? कक्सबाजार কক্সবাজারে ইন্ডিয়া নিয়ে আইছিল। হ্যাঁ মায়ের কো থাকো কোথায় বাড়ি কই? बारी बांग्लादेश में रेफ्यूजी कैंप है। कक्सबाजार रिफ्यूजी कैंपে আছে? रेफ्यूजी कैंप है আরে কল ইন্ডিয়া কি করতে আইছো? इंडिया में काम करने के लिए आते हैं। কাম করানোর লেগে আইছিল? আচ্ছা তো কোথায় ধরছে তোমারে? मैं हैदराबाद था। হ্যাঁ हैदराबाद में इनिशियर का काट है। अच्छा। सरकार का इधर का তো বাংলা বলতে পারো না करते पारो। কেন? তুমি তো বাংলাদেশের লোক। हम बांग्लादेश में बर्मा का लोग है। 2017 में बांग्लादेश में आया। अच्छा बांग्लादेश का कक्सबाजार कुतुपालम कैंप से हुआ है। अच्छा कॉक्सबाजार कैंप से आया? और काम से अच्छा फिर शालीमार में पकड़ा गया पुलिस? हावड़ा स्टेशन में पकड़ा। हावड़ा स्टेशन में पकड़ा। तो नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद आलम। पासपोर्ट किच्छु नहीं? पासपोर्ट नहीं है। बांग्लादेश का रेफ्यूजी कार्ड है। हाँ। इंडिया का भी रेफ्यूजी कार्ड है। रिफ्यूजी कार्ड है? रेफ्यूजी कार्ड है इनिशियर का। अच्छा ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। 127 साल पुरानी एएई ने आज विंटेज कार रैली का आयोजन किया। महासचिव प्रबीर रॉय ने कहा कि इस रैली में जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और अमेरिका की विंटेज कारें शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में वे भारतीय क्लासिक वाहनों को भी प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। निस्संदेह एक विशेष आयोजन। ब्रिटेन, अमेरिका, इटली और जर्मनी की लगभग 100 विंटेज कारें कोलकाता की सड़कों की शोभा बढ़ाई। कुछ मुख्य आकर्षणों में 1913 स्टोवर, 1928 मैग्निफिसेंट और लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस से लेकर मर्करी 8, ऑस्टिन A70, फैंटम, एडलर, फोर्ड और एसेक्स सुपर 6 तक की क्लासिक कारें शामिल है। साथ ही लगभग 50 अन्य शानदार ऑटोमोबाइल भी शामिल हैं। विंटेज कार रैली को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी गई।
Please wait for the car to go. Please remember, these cars are not like modern cars. Their brakes doesn't work so efficiently. So if you are in front of the car, it's at your own risk. Car number 25 is going to be flagged up now. This car is going to be flagged up by Mr. Nitin Dosa, Ahmedin Judge. You can flag up in about a minute. I request everybody, all the spectators, press, and everybody to keep away from ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।